हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का एक बार फिर से। आज नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट का हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का सिलेबस है और जो सब्जेक्ट है। आई वुड लाइक टू गिव द कंटेंट क्रेडिट्स to the faculty members, and I will try to explain all the topics as per my belief and as per my knowledge. So myself is Ravi Ranjan here, and let's start the video. The first module is understanding knowledge and its relation to education. So the content credit goes to the various faculty members, that is Chitra ma'am, Sasikala ma'am, and the faculty members Aditi ma'am, Sasikala ma'am, and Principal Dr. Faguni Sa ma'am. So I here Ravi Ranjan welcome you all. So let's start a video. So the first topic which is given here is understanding knowledge and its relation to education. So first of all, we'll discuss about the perspective of knowledge and education. If we'll discuss about the perspective and knowledge and education, so the first of all we'll to discuss about the meaning and characteristics of knowledge, the types of knowledge, the philosophical perspective, that is personal, propositional and procedural. Next is educational perspective, that is conceptual, strategics and situational. Right, now first of all we'll discuss about the definition of knowledge, that is meaning and characteristics of knowledge. Knowledge is a familiarity of awareness of someone or something, such as facts, skills और objects, often contributing to understanding. अगर हम बात करें नॉलेज की, तो इसके अंदर अवेयरनेस किसी भी चीज़ का हो सकता है या किसी इंसान का हो सकता है, चाहे वो फैक्ट्स हो, स्किल्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, ये सारी चीज़ें हमारे नॉलेज के अंदर आती है. बाय मोस्ट अकाउंट्स नॉलेज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मैनी डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीके से हम लोग नॉलेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड फ्रॉम मैनी सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से भी हम नॉलेज को गैदर कर सकते हैं. हालांकि एक बात अगर हम बात करें, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू परसेप्शन, रीजन, मेमोरी, टेस्टिमोनी, साइंटिफिक इंक्वायरी, एजुकेशन एंड प्रैक्टिस. बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को अगर हम ध्यान में रखें तो किसी एक पर्टिकुलर परसेप्शन पे डिपेंड नहीं करता, ना रीज़न पे, ना मेमोरी पे, ना टेस्टोमोनी पे, साइंटिफिक इंक्वायरी हो या एजुकेशन हो या कोई प्रैक्टिस हो. अगर हम बात करें नॉलेज की, द नॉलेज कैन रिफर टू ए थियोरिटिकल और प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट definition. Basically it refers to the theoretical and practical understanding of a subject. So if you want to understand a subject practically, so we need to have the term knowledge that defines the concept. So now let us discuss about the definition. It refers to the facts, information and skills required or acquired through experience or education. So basically knowledge refers to the facts, that is information and skills acquired through experience, or knowledge refers to the facts, information and skills acquired through education. It can be theoretical or it can be practical. So the education can be theoretical also and it can be practical also. It also helps to understand the particular subject. Knowledge also refers to the fact and condition of being aware of something. Means if anything relies or something lies in this universe, so we need to understand. If we know the condition or the fact, it refers to knowledge. Now it can be implicit, means it can be practical skill also, or it can be expertise, or explicit. So implicit का मतलब क्या होता है? implicit का मतलब practical और explicit का मतलब theoretical understanding. अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास practical knowledge है, इसका मतलब ये है कि we have implicit knowledge. And if we'll talk about explicit knowledge, it refers to theoretical understanding of a subject. Now the knowledge can be formal also and it can be informal also, particular also or systematic. So basically, as we have discussed, the knowledge can be implicit, that is practical, explicit, that is theoretical. It can be formal or informal, systematic or particular. Let's move to the next part. Now we'll discuss about the characteristics of the knowledge. So knowledge is power. As you know that those who has the maximum knowledge, he is the most powerful person in this world. Knowledge never decays. ये जो ज्ञान होता है वो कभी बर्बाद नहीं होता, खराब नहीं होता,
नॉलेज इज़ पावर, मतलब अगर जो इंसान के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस दुनिया में. इंफॉर्मेशन इज़ द सोर्स टू नॉलेज. इफ़ यू वांट टू गैदर नॉलेज, so if you want to know where the knowledge comes from, it comes from the information. Knowledge accumulates in orderly manner. Orderly means one by one, sequentially. Knowledge एक एक करके आता है. It can be it cannot be attained अनएक्सपेक्टेडली और इंसिडेंटली. कि ऐसा नहीं होगा कि कभी एकाएक नॉलेज मिल गया, नहीं. नॉलेज के लिए आपको एक पेशेंस, परसिवरेंस और एक ऑर्डर फैशन में, एक सीक्वेंशियल फैशन में या सीक्वेंशियल तरीके से आपको नॉलेज मिलता है. ठीक है ना. चलिए आगे बात करें. ट्रूथ एंड वैल्यूज आर कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ नॉलेज. नाउ इफ विल टॉक अबाउट व्हाट आर द बेसिस ऑफ नॉलेज. व्हाट आर द बेसिस ऑफ नॉलेज? ट्रूथ एंड वैल्यूज. सो इफ यू know about a particular thing, that is truth, that is values of the particular thing or the particular person, it refers to the basis of knowledge. Basically, the other part is that it is non-depleting. Unlike other resources that are managed because of their scarcity value, the more knowledge is used, the more is generated. We all know about information overload. हमें पता है information overload क्या होता है. देखिएगा, एक बात समझना ये है कि पहली बात कि नॉलेज कभी डिप्लीट नहीं होता. दूसरी बात कि जिस तरह से सभी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से नॉलेज को भी हम मैनेज कर सकते हैं. जितना से ज़्यादा हम जनरेट करेंगे उतना ज़्यादा हमें नॉलेज मिलेगा. एक बात ध्यान रहे कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए. कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हमारे काम का है और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हमारे काम के लिए काम का नहीं है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Next is chunkable and portable. It can be summarized, compressed or divided in manageable units for easier transfer and management. Chunkable and portable means हम नॉलेज को क्या कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. इसको मैनेजेबल यूनिट्स, जिसको हम अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि हम उसको ट्रांसफ़र कर सकें और अलग अलग मैनेजमेंट स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नॉलेज इज ट्रांसफरेबल. Transferable means it can move from one place to another. Means it can move from one place to other place or it can transfer one person to another person. As we discussed that it can be explicit or it can be implicit. जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि explicit भी हो सकता है और implicit. Explicit का मतलब क्या होता है? Theoretical understanding of a subject. And implicit का मतलब practical skill और practical knowledge about a subject और एक कॉन्सेप्ट. चलिए आगे देखते हैं. ट्रांसफरेबल का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि नॉलेज हम एक इंसान से दूसरे इंसान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एक्सप्लिसिट का मैंने बताया था क्या? थियोरेटिकल नॉलेज. क्या बोला था मैंने? थियोरेटिकल नॉलेज, है ना. चलिए आगे देखते हैं. दूसरी बात कि जैसा कि हमने देखा, इट कैन बी इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड वाया नेटवर्क्स टू मैनी पीपल. नॉलेज को हम एक पर्टिकुलर नेटवर्क से बहुत सारे लोगों में शेयर कर सकते. मोबाइल और मोबिलिटी. मोबाइल, इट टेंड्स टू लीक एंड डिफ्यूज ईदर एज पीपल मूव जॉब्स, टॉक और थ्रू टेक्निकल रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन. मीन्स कि अगर हम बात करें तो नॉलेज को हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और जैसे कि हम जॉब से मूव करते हैं, बात करते हैं वैसे, या टेक्निकल रिप्रोडक्शन या ट्रांसमिशन करते हैं, वैसे ही हम नॉलेज को ट्रांसफ़र या डिफ्यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूटेबल. सब्सटीट्यूटेबल का मीन्स इट मैनी सिचुएशंस इट कैन रिप्लेस फिजिकल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सर्विस रिसोर्स. मीन्स इसको क्या कर सकते हैं हम? सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. द टेलीकम्युनिकेशन रिड्यूसेस द नीड फॉर ट्रैवल और फिजिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हमारे चीज़ों को रिड्यूस करता है फिजिकल ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में, वैसे ही नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं? सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं. विन विन शेयरिंग. विन विन शेयरिंग मीन्स इफ़ यू शेयर योर नॉलेज विद अनदर पर्सन, द फर्स्ट पर्सन डज नॉट लूज इट. मतलब अगर हम अपने नॉलेज को किसी और के साथ शेयर करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नॉलेज कभी कम होने वाला है. नॉलेज हमेशा बढ़ता है, नया जनरेट होता है, वो कभी भी कम नहीं होता है. नॉलेज इज़ इनफाइनाइट. जो ज्ञान है वो अनंत है. इसका मतलब ये है कि हम इस दुनिया में कितनी भी चीज़ें सीखने की कोशिश करें वो कम ही है. तो वो क्या है? इनफाइनाइट. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज का.
उसमें हम बात करेंगे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव दैट रिफर्स टू पर्सनल, प्रोपोजिशनल एंड प्रोसीजरल। नेक्स्ट इज एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्चुअल, स्ट्रैटेजिक एंड सिचुएशनल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हमने बात किया अभी, टाइप्स ऑफ नॉलेज के अंदर क्या है, फिलोसॉफिकल है और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, जब हम बात करेंगे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव की, तो इसके अंदर दो चीज़ें होंगी। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है पर्सनल और दूसरा है प्रोपोजिशनल, राइट। नेक्स्ट एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो क्या है, कॉन्सेप्चुअल है और स्ट्रैटेजिक है। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है पर्सनल, प्रोसीजरल एंड प्रोपोजिशनल। नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल, सिचुएशनल एंड स्ट्रैटेजिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स। एक एक करके इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए फिलोसफिकल नॉलेज के बारे में समझते हैं। फिलोसफिकल नॉलेज इज बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ फिलोसोफर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। बेसिकली जो फिलोसफिकल नॉलेज होता है वो किसी फिलोसफर, दर्शन शास्त्र बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें, फिलोसफर्स ने नॉलेज को तीन तरीके से डिवाइड किया है। पहला पर्सनल नॉलेज। पर्सनल नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ ए फैक्ट दैट ए पर्सन हैज हिमसेल्फ गेन थ्रू हिज ओन। पर्सनल नॉलेज उसे कहते हैं कि जिसमें कि एक इंसान ने कोई नॉलेज गेन किया, वो खुद अपने बलबूते पे गेन किया है। ठीक है, खुद अपने द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनल नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ ए सर्कमस्टांस और फैक्ट गेन थ्रू फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। इसके अंदर ये है कि पर्सनल नॉलेज उसे कहते हैं जिसमें कि कोई एक इंसान ने कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक परिस्थिति को या उसके तथ्य की नॉलेज इकट्ठा किया है उन्होंने, और उसका ऑब्जर्वेशन और उसके एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं नॉलेज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल नॉलेज डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंसेस। वो किसी के अनुभव पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिसेस एंड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो हर एक इंडिविजुअल जो अपना नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्रैक्टिस के बेसिस पे या किसी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे प्राप्त करता है, उसे हम पर्सनल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्विटेंस। एक्विटेंस के बेसिस पे होता है। एक्विटेंस का मतलब किसी परिचित के आधार पर। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ के बारे में हमें पहले से पता हो तो उसके बेसिस पे हम नॉलेज को गेन करते हैं, और इसको ये बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल नॉलेज। अगर हम बात करें पर्सनल नॉलेज को, पर्सनल नॉलेज किस मेमोरी, इमोशंस, सेंस और पर्सपेक्टिव, ये सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी का मेमोरी हो या किसी का इमोशंस हो या किसी का सेंस हो या किसी का पर्सपेक्टिव हो, इस पर डिपेंड करता है पर्सनल नॉलेज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पेरेटिव नॉलेज। इम्पेरेटिव नॉलेज इज द नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए टास्क। देखिए, इम्पेरेटिव नॉलेज वो नॉलेज होता है जिसमें कि कोई काम को करने के लिए हमें उस नॉलेज की ज़रूरत पड़े। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इट रिफर्स टू द नॉलेज ऑफ हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक स्किल और टास्क एंड इज considered knowledge related to methods, example maths, procedures, work, cooking or operation of equipment including machines or computers, example driving a car, painting, playing instrument etc. देखिए, प्रोसीजरल नॉलेज की अगर बात करें, ये एक ऐसा नॉलेज होता है जिसमें कि किसी भी काम को करने के लिए जो स्किल की ज़रूरत पड़ती है, वो नॉलेज को हम प्रोसीजरल नॉलेज बोलते हैं। जैसे कि अगर मुझे मैथ्स बनाना हो, मैथ्स के कंसेप्ट या मैथ्स के क्वेश्चंस बनाने हो, तो उसके हमें फार्मूला, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वैसे ही कोई काम अगर करना हो तो उस काम को करने का प्रोसीजर पता होना चाहिए। जैसे कोई कुकिंग करनी है या कोई खाना बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और कोई भी ऑपरेशंस, किसी मशीन्स को बनाना है, तो उस चीज़ को भी बनाने के लिए, उस मशीन्स को यूज़ करना है तो उसको भी यूज़ करने के लिए स्किल आना चाहिए, और उस टाइप के नॉलेज को हम प्रोसीजरल नॉलेज बोलते हैं। या कंप्यूटर का यूज़ करना है तो उसके लिए भी जो नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम प्रोसीजरल नॉलेज बोलते हैं। जैसे आईसीटी है, इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, और तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट स्किल की ज़रूरत होती है, जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, उस चीज़ को हम प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। जैसे कि ड्राइविंग है कार, अगर हमें ड्राइविंग करनी है कार को, तो हमें सारे गियर्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें पेंटिंग
करना है तो हमें सारे कलर्स का नॉलेज होना चाहिए, कौन से कलर मिक्स करने से कौन सा कलर बनता है। और कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना बजाना हो तो हमें जो अलग अलग थीम्स हैं, जो ट्यून्स हैं, उसे हमें पता होना चाहिए, चाहे वो सा रे गा मा जो भी है, तो उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। इस टाइप के नॉलेज को हम प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोजिशनल नॉलेज। लेट्स फिगर इट आउट कि ये प्रोपोजिशनल नॉलेज क्या होता है। प्रोपोजिशनल नॉलेज उस नॉलेज को कहते हैं जिसमें कि विच गिव्स नॉलेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जो हमें अलग अलग नॉलेज के बारे में बताया जाता है, अलग अलग नॉलेज के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं या जानते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें प्रोपोजिशनल नॉलेज की तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है या डिक्लेरेटिव होता है। डिस्क्रिप्टिव या डिक्लेरेटिव यानी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है या डिक्लेयर करता है, उस टाइप के नॉलेज को हम प्रोपोजिशनल बोलते हैं। प्रोपोजिशनल मीन्स इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, राइट। इट रिफर्स टू डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्राइबिंग अबाउट समथिंग, और डिक्लेरेटिव डिक्लेयरिंग अबाउट समथिंग, राइट। इफ द नॉलेज ऑफ समथिंग, इट इज़ द नॉलेज ऑफ समथिंग नॉट अबाउट हाउ टू डू समथिंग। इट इज़ नॉट लाइक किसी चीज़ को कैसे करना, ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है इट इज़ नॉट डिफाइनिंग स्किल्स। ये सिर्फ स्किल्स बेस्ड नहीं होता, इट डिफाइंस व्हाट नॉलेज इज एक्वायर्ड इन मेमोरी, कि जो नॉलेज जो हमें मेमोरी में रखनी है, जो नॉलेज हमें मेमोरी में रखनी है, वो नॉलेज को हम प्रोपोजिशनल बोलते हैं। इसको एक ब्रॉड टर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। एक सर्कल है तो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का है। सभी आपको पता है ये 360 डिग्री का होता है, यस और नो। मीन्स एंगल्स अराउंड ए सर्कल इज 360 डिग्री। स्टार्ट न्यू सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर। जनरली ये बेसिक कंसेप्ट हैं, जिसमें कि कोई सही नए सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे ए पपी इज द यंग वन ऑफ ए डॉग, तो बेसिकली इट इज़ अ फैक्ट बेस्ड रिलेशन, फैक्ट बेस्ड कंसेप्ट, जिसमें जो हमारे ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड या फिर मेमोरी में पहले से होता है, इसको हम प्रोपोजिशनल नॉलेज कहते हैं। जैसा कि आप समझ गए कि ये अलग अलग तरीके का होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, डिक्लेरेटिव होता है। इसके बारे में सिर्फ ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हम किसी चीज़ को कैसे करेंगे, इसमें हमें स्किल्स को डिफाइन करना ही सिर्फ नहीं होता है, जबकि ये सारी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या फिर वो चीज़ हमारे माइंड में पहले से होता है। जैसे एग्जाम्पल, 3 एंगल्स अराउंड ए सर्कल इज 360 डिग्री। अगर हमें कोई सेंटेंस को स्टार्ट करना है तो उसे कैपिटल लेटर में, ये बेसिकली हमारे ऑलरेडी मेमोरी में होता है, उसके लिए कोई नई स्किल्स जानने की जरूरत नहीं। ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमारे माइंड में पहले से हैं, वो सारी चीज़ें प्रोपोजिशनल नॉलेज के अंदर आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल नॉलेज इज बाय पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनिस्ट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। तो एजुकेशनल नॉलेज जो है अलग, ये वो पर्सपेक्टिव है जो एजुकेशनिस्ट ने बता रखा है, इसीलिए हम इसको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। क्योंकि एजुकेशनिस्ट जो लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने बता रखा है, इसीलिए हम इसको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। कंसेप्चुअल नॉलेज, तो पहला कंसेप्ट है हमारा कंसेप्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल नॉलेज रिफर्स टू द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो जैसा कि हमने देखा, कंसेप्ट यहाँ पे नाम ही, यहाँ पे टर्म सेल्फ डिफाइनिंग है। टर्म क्या दिया है हमारे पास, कंसेप्चुअल नॉलेज। तो कंसेप्चुअल नॉलेज में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि द टर्म इज कंसेप्ट, सो इट रिफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स, इट रिफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज, theories, models, classifications. So basically conceptual knowledge refers to concepts, कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है या कंसेप्ट है या कोई प्रिंसिपल्स हो या थ्योरी हो या किसी पर्टिकुलर मॉडल्स पे बेस्ड हो या क्लासिफिकेशंस। वी लर्न कंसेप्चुअल नॉलेज थ्रू रीडिंग, viewing, listening, experiencing, or thoughtful, reflective through mental activity. Means that we can, अगर हमें कोई कंसेप्ट नॉलेज लेना है तो वो हम पढ़ के ले सकते हैं, किसी चीज़ को देख करके ले सकते हैं, किसी चीज़ को सुन कर ले सकते हैं, या उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके ले सकते हैं।
या फिर उसके बारे में सोच के ले सकते हैं, है ना। तो इट ऑल्सो रिफर्स टू द मेंटल एक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव मेंटल एक्टिविटी मीन्स जो भी हम करेंगे, चाहे मेंटल एक्टिविटी कोई भी पार्ट हो सकता है, चाहे वो रीडिंग का हो, व्यूइंग का हो, लिसनिंग का हो, एक्सपीरियंस लेने का हो, ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअल नॉलेज के अंदर आएगी, ठीक है। इट इज़ स्टैटिक नॉलेज अबाउट फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स रिलेटेड टू सिचुएशन। ये स्टैटिक फैक्ट्स रिलेटेड होता है, प्रिंसिपल्स हो या कंसेप्ट्स हो, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन का वो फैक्ट हो, प्रिंसिपल हो या कंसेप्ट हो। दिस नॉलेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ वी अप्लाई आवर नॉलेज। इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी नॉलेज अगर हमारे पास है तो उस चीज़ को हम अप्लाई कैसे करेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल, ए डॉक्टर मस्ट हैव कंसेप्चुअल नॉलेज रिगार्डिंग मेडिसिन, डिजीजेस एंड सिम्टम्स। सो जैसे कि हमने बात किया कि किसी भी कोई डॉक्टर है तो उसको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए कि कौन सा मेडिसिन यूज़ करना है या कौन सा मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना है, डिजीजेस कौन से हैं उसे डिटेक्ट कैसे करना है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो बेसिकली दिस रिफर्स टू द सिचुएशंस, that refers to the concepts, principles, the theories, why it has happened, hmm? Right. So basically this refers to the conceptual knowledge. Let's move to the next part. Next is situational knowledge. What is the meaning of situational knowledge? Let's figure it out. Situational knowledge is knowledge about situations as they appear typically in a particular domain. देखिएगा, अगर as we see that this is refers to a knowledge that comes on the basis of particular situations. Now when we talk about situations, what type of situations we will discuss? Now this knowledge is the knowledge we gain from our experiences, from dealing with and understanding certain situations. अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आता है, ठीक है, तो हम उसके साथ कैसे डील करते हैं और उससे जो नॉलेज मिलता है वो हमें सिचुएशनल नॉलेज कहलाता है। जैसे यू सी थिंग्स, यू लर्न थिंग्स, जैसे हम चीज़ों को देखते हैं वैसे हम चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, राइट। यू स्टार्ट टू आइडेंटिफाई द बिग इशू एंड यू स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। जब आपके सामने या हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आया क्यों, और फिर हम उसका पैटर्न डिटेक्ट करते हैं कि क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या इसके पैटर्न्स थे, ये प्रॉब्लम्स आई क्यों, राइट। व्हाट इज अ बिग इशू, व्हाई इट हैपेंड, व्हाट आर द लूप होल्स बिहाइंड इट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर पैटर्न व्हाई दैट टाइप ऑफ सिचुएशन अकर्ड, right? Let's figure it out. For example, a person riding a bike on a slippery road knows that the bike should skid due to the reduced friction between the road and the tire. He or she knows because at first time bike skids, that he understand the situation the next time will not skid, right? Means जैसा कि हमने देखा, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। जैसे कि एक आदमी अगर वो बाइक को रोड पे चला रहा है लेकिन अगर रोड स्लिपरी है, तो जैसा कि पता है अगर रोड स्लिपरी होता है तो देर इज़ अ रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, और हम लोग बाइक को रोड पे इसीलिए चला पाते हैं क्योंकि जो बाइक का टायर है और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, इसीलिए हम वॉक भी कर पाते हैं रोड पे फ्रिक्शन की वजह से। और स्लिपरी रोड में उनके टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है या फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है, इसलिए बाइक स्किड करने लग जाता है। तो एक बार अगर सपोज वो एक बार स्किड कर गया तो अगली बार वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि ये सिचुएशन दोबारा ना आए उसके साथ। तो इसलिए वो क्या करेगा, ही विल डू द नेसेसरी प्रिकॉशंस, ही विल ड्राइव स्लोली, right? So he will take care that this situation should not occur again. I hope I am clear. Yes. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक नॉलेज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक नॉलेज? स्ट्रैटेजिक नॉलेज मीन्स strategic knowledge is based on the stages an individual needs to follow to solve a problem. देखिए जैसा कि हम कहते हैं ना, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, या कभी भी कोई सिचुएशन हमारे पास आता है
तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। तो उस टाइप की नॉलेज को हम स्ट्रैटेजिक नॉलेज कहते हैं। जैसे ए स्ट्रैटेजी इज ए सीरीज दैट इज टेकन टू रीच ए पर्टिकुलर गोल। जैसे कि सभी लोग बीएड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा अलग अलग सेमिस्टर्स हैं, 4 सेमिस्टर्स हैं, आप लोगों को अलग अलग असाइनमेंट्स करने हैं, हम सभी लोगों को असाइनमेंट्स करने होते हैं, अलग अलग को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने होते हैं जो हम बच्चों को सिखाएंगे, वो चीज़ हम प्रैक्टिकली क्लास में भी करते हैं। तो इसका एक स्ट्रैटेजी होता है, वैसे ही करिकुलम होता है जो हमें एंटायर पूरे ईयर फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम को या कोई बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, जो हम गोल को प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस सीरीज़ को हम और उससे मिलने वाले नॉलेज को हम स्ट्रैटेजिक नॉलेज बोलते हैं। जैसे ए चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर। अगर कोई स्टूडेंट है उसको फॉर्मल लेटर लिखना नहीं आता है, द टीचर फाइंड्स द चाइल्ड knows informal letter but does not know how to write subject of formal letter। इनफॉर्मल लेटर तो चलो मान लेते हैं कि स्टूडेंट को लिखना आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, टीचर डिसाइड टू टेक प्रैक्टिस एंड मेक ए चाइल्ड टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट इज द मेन मोटो ऑफ राइटिंग द लेटर। अगर सब्जेक्ट जो है लेटर का वो मेन मोटो होता है, सो द टीचर यूज द स्ट्रैटेजिक नॉलेज, सो द टीचर यूज द स्ट्रैटेजिक नॉलेज हाउ टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। सो बेसिकली in this example we understood that to how to write a particular letter, specifically the formal letter, so the teacher uses the strategic knowledge to make the student understand that how to write a letter that is formal. So basically the particular goal is to be achieved using a particular strategy to solve a particular problem, and that type of knowledge that comes from this domain is called strategic knowledge. Let's move to the next point. Now next section, that is section B of unit 1, is education. That is, now we need to understand the etymological meaning of education. That now we will discuss about definitions and characteristics of education. ठीक है, now the meaning of education in Hindi is शिक्षा, right? तो हमें शिक्षा की परिभाषाएं समझनी है और उसकी विशेषताएं कि what are the characteristics of education, and we have to discuss the knowledge, that is the meaning of education, that is in terms of etymological meaning of the education. Let's move to the next part. So now the first important thing that we can see, etymological definition. So what is the etymological definition? Etymological is the history of words including the way we have changed through the years. तो etymology जो है बहुत सारे words का history है, मतलब it is a collection, वो जो बार बार आने वाले समय में बदलता आया है और उसमें चीज़ें बदलती आई हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट इज द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, मीन्स द वे they have changed throughout the years, right? So now we need to understand the Greek word etymology, etymologia. So you can pronounce it as etymologia. What is the meaning of etymologia? Etymology means study of the true sense of a word. मीन्स कोई वर्ड है हमारे पास, उसका ट्रू सेंस क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, यही है एटाइमोलॉजिकल। सो अब जब बात कर रहे होंगे जो शिक्षा, दैट एजुकेशन, उसका जो ट्रू मीनिंग है, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड एजुकेशन, दैट वी विल डिस्कस हियर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द वर्ड एजुकेशन हैड सेवरल एटाइमोलॉजिकल रूट्स। तो एजुकेशन के अलग अलग ट्रू मीनिंग है, एक एक करके समझते हैं। एज वी कैन सी द वर्ड इज एडुकेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडुकेयर? एडुकेयर मीन्स टू रेज अप, किसी चीज को आगे बढ़ाना या ऊंचा करना, बढ़ाना। टू ट्रेन, किसी को ट्रेनिंग देना। टू मोल्ड, किसी चीज को चीजें समझाना या फिर नरिश करना।
ठीक है, दैट इज अपब्रिंगिंग, राइट. सो बेसिकली educare refers to raise up, to train, to mold or to nourish. The Sanskrit word शिक्षा, जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं, आई होप आप सभी लोगों को शिक्षा वर्ड पता होगा, है ना. शिक्षा, एजुकेशन, राइट. चलिए, दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड सास. SAS, that is the education refers to the art of drawing out or nourishing what is inherent in a person. देखिए, एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब है आर्ट ऑफ ड्राइंग आउट, मतलब कि किसी के अंदर कोई ज्ञान है या नॉलेज है या किसी ने कोई शिक्षा ले रखी है, एजुकेशन ले रखा है, तो उस चीज़ को हम कैसे और बेहतर बनाएं और उस चीज़ को हम कैसे लोगों से यूज़ कर सके, इनहेरिट कर सके जो ज्ञान हमने लिया है. जैसे एक डॉक्टर है जो एक ऑलरेडी टीचर भी है, तो वो लोगों बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि दूसरे बच्चे भी डॉक्टर बन सके. तो ये एजुकेशन है, ठीक है, ये इनहेरिटेड है और हमें ये पता लगाना है कि उस चीज़ से हम उस नॉलेज को या उस एजुकेशन को हम दूसरे के पास ट्रांसफ़र कैसे करते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन स्पेशली एट स्कूल और यूनिवर्सिटी. तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो बेसिकली एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन होता है जो हम लेते हैं या देते हैं. तो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन जो हम दूसरों से रिसीव करते हैं या फिर हम किसी दूसरे को देते हैं. लेकिन ये सारी चीज़ें एजुकेशन होती है या तो वो स्कूल में होती है या यूनिवर्सिटी में होती है, जबकि नॉलेज एक डिफरेंट टर्म है, ठीक है. वो किसी स्कूल में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन एजुकेशन जो है या तो वो स्कूल में दी जाती है या ये यूनिवर्सिटी में दी जाती है. ये एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन होता है, या हम किसी से एजुकेशन लेते हैं या एजुकेशन किसी को देते हैं. इसी का एक ब्रॉडर टर्म है टीचिंग, जो हम आगे चल के बात करेंगे. द एक्ट और प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और एक्वायरिंग जनरल नॉलेज, डेवलपिंग द पावर्स ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, and generally of preparing oneself or others intellectual for mature life. So as you can see that if you want to impart general knowledge, the power of reasoning, judgment and preparing oneself for intellectual or mature life, so that refers to education. Now education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, morals, beliefs, habits and personal development. So as we can see, knowledge, skills, values. So as I have said, technology is a acquisition of knowledge. So if we'll talk about knowledge is a part of education, it's not a complete education, right? So skills, values, morals, habits, personal development, this is also carried out in the school and university, right? Okay, so education is both the act of teaching knowledge to others, as we said, देखा जैसा कि मैंने कहा कि it is an act of teaching, right, and the act of receiving knowledge from someone else, generally carried out in school and college. Okay, right. So education also refers to the knowledge received through schooling or instruction and to institution of teaching as a whole. अगर हम बात करें कि education is received through schooling or instruction and to institution of teaching as a whole, means, so as we have discussed, that teaching of knowledge that is carried out in a school is called education, right? So that can refers to our different type of subjects, right? And skills, values, habits, personal development, this is also refers to education. Now education is a word that covers both the act of instructing and the act of learning. So इसके अंदर जैसा कि मैंने बोला, या तो हम सीख रहे होते हैं या फिर हम किसी को सिखा रहे होते हैं. मीन्स इट कैन बी द एक्ट ऑफ लर्निंग ऑल्सो एंड इट कैन बी द एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्टिंग समवन एल्स. ईदर वी आर टीचिंग टू समवन एल्स और वी आर लर्निंग फ्रॉम समवन एल्स, फ्रॉम ए पर्टिकुलर टीचर. ओके, इट यूजुअली refers specifically to the teaching of children and younger people and the learning done by them,
right? So now we discuss about key that education, who carries out the education concept. Education is or the teaching of children or younger people is carried out by the teachers, right? So they are called as, the students are called as learners, and the teachers or the instructors are called as the teachers, right? So education can be thought to as transmission of the values and accumulated knowledge of a society. Now, now in a broader term, it is also referred to that education also helps in the transmission of values, right? And it is also an accumulated form of knowledge that is carried out generally in a school, college, or by instructors to the learners, and for the overall development of a society and to accumulated knowledge of a society. Got it? चलिए आगे देखते हैं. Now, what are the characteristics of education? Now we'll discuss about the characteristics of education. So we'll discuss about characteristics of education. तो हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं हैं, राइट? एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जैसा कि हम जानते हैं एजुकेशन कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा हम सीखते रहते हैं. जैसे कि नॉलेज इज़ ऑल्सो ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? So basically education is also a lifelong process. It is a lifelong process because in every stage of life, right, an individual life of an individual is important from educational point of view. Means in every part of life, that is every stage of life, it is important in terms of education. So everyone is gaining education at any point of time, at every stage of life, whether it is sensory motor stage or it is like concrete operational stage, formal operational stage, right, or any sort of stages of life, we are in the part of education and we learn from the instructors. Okay, now next is education is a systematic process. So first is our lifelong process, next is systematic process. It refers to transact its activities through a systematic institution and regulation. Systematic institution means like school, college, and there are certain rules and protocols to learn that particular knowledge, or we gain education from a particular systematic education or systematic institution that includes curriculum, syllabus, textbook, everything. Next is here is education is development of individual and the society. Means education helps in the development of individual, yes, and of course the society. Means a person who is educated, that is a educated, that is a mature person, mature individual, and it is good for the betterment of the society also, right? Now education is a force for social development. Now the society can only develop if the people that lives inside the society is well educated, which brings improvement in every aspect of society. Education should be relevant to life situations. It is means कि education should not only be related to the textbooks or the knowledge that is gained from the books. It should be related to the life situations. Means if any difficult situations come in our life, using our educated brain, how we tackle with that difficult situation, that is also the part of education. Now we will discuss about education. Education is modification of behavior. Now human behavior is modified and improved through the educational process. It brings about integrated development of individuals. What does it mean? Means a particular behavior of a person is modified if he becomes educated. Means if a person has violent behavior and he has to make the education, he has given the education of emotional intelligence, then he will behave well with others, respect others. So it is also referred to as that a well educated person helps to change the behavior of a violent, anxious, or an angry person using the concept of emotional intelligence.
So education is a modification of behavior. Next is education is a training, right? Human senses, mind, behavior, activities, skills are trained in a constructive and socially desirable way. What does it mean? Means कि human senses, what we feel, what we understand, what we think, and what we believe, and how we understand the things around us. So senses are like what we touch, what we sense, what we see, what we hear, what we think in terms of our mind, how we behave. So basically, it is a type of training that how we have to behave, we have to control our senses in a constructive and socially desirable way. Means in terms of when we are doing a constructive work and or we are living in a society, we need to control our senses and we need to understand the emotions of others and how we need to behave with others, and that type of skills are trained using the concept of education, which is done by the education for the learner, sometimes in a school, mostly in schools or colleges or universities, and sometimes from the senior teachers. Moving to the next part is the education is the instruction and direction. Means a well educated person gives instruction and direction to those who need education. It directs and instructs an individual to fulfill his desires and needs for exaltation of his whole personality. Means कि if a person is educated, then he will be able to fulfill all his desires and he will upgrade his overall personality. Means an educated person will always have a great personality and he will be able to fulfill all his desires. Education is life. So the most important part, yes, education is life. Life without education is meaningless. And like the life of a beast, every aspect and incident needs education for its sound development. Yes. Now we discuss about education is life. Why it is life? Because without education, the person who is not educated, his life is meaningless. It is just like a beast, right? Or the most important thing is that every aspect of our life, an incident that needs education, and we need it for the sound development of our life. Okay, so we'll summarize it all, right? Education is a lifelong process. Next is it is a systematic process, right? Education is a development of individual and society. It is a modification of behavior. It is a training. It is instruction and direction. Education is life, right? Education is a lifelong process, as I have discussed, right? So we'll talk about characteristics of education. First is lifelong process. It is systematic. It is development of individual and society. It is modification of behavior. T for training, instruction and direction, and life. So we can call it as LSD MTIL, right? Lifelong process, systematic process, development of individual and society, modification of behavior, training, instruction and direction, and life. So these are the characteristics of education. Let's move to the next part. Now we'll move to the next concept, that is epistemological basis of education. Epistemological, EPISTEMOLOGICAL. If the student who can't see, basis of education, right? So now we also will discuss here this difference between knowledge and information, teaching and training. Very important time in most of the examinations, in university examinations, and sometimes in competitive examinations as well, like CTET examinations. These type of questions are asked. Okay, so epistemological basis of education, and we'll discuss about knowledge and information, teaching and training. Okay, now let's move to the next part. Now we need to discuss about what is epistemology.
So epistemology is derived from the ancient Greek word episteme, meaning scientific knowledge. What is the meaning of episteme? Episteme means scientific knowledge, right? What is the meaning of episteme? Episteme means a scientific knowledge, and logos means speech or word. Means in this context denoting codified knowledge of, means codified knowledge, means we need to discuss about, when we talk about epistemology, it means that you need to have a scientific knowledge about your concept, and you need to have how to explain, that is a speech or word. In this context, when we talk about epistemology and in terms of education, it means that codified knowledge. It is not a particular simple knowledge or a general knowledge, it is a scientific knowledge. Now let's figure it out ki how does it matters. J.F. Ferrier coined the epistemology on the model of ontology to designate that branch of philosophy which aims to discover the meaning of knowledge. Now, the one of the greatest person, that is J.F. Ferrier, has explained the meaning of knowledge. It is call it as the true beginning of philosophy. When we talk about epistemology, means true meaning of, or true or scientific meaning of knowledge, that is scientific knowledge of something, right? So true beginning of philosophy starts from this. Epistemology focuses on our knowledge of reality. Knowledge of reality means what we really feel, and what we really think, and what we really see, what we really believe, what we really see, what we really believe, hear, that refers to epistemology. Epistemology analyzes about the validity of source of knowledge. Validity of source of knowledge means we got a lot of information. Sometimes in internet we have some fake news also. Epistemology says that we need to have a particular proof of that particular idea or particular news, that is whether the news is valid or not, that comes from the right source or not. So epistemology also refers to the process of having the scientific knowledge from the right source. Okay, epistemologists try to answer the questions like what is the difference between knowing and believing. किसी चीज को आप जानते हो या किसी चीज को आप मानते हो, दोनों में फर्क है. क्या फर्क है जानने में और मानने में? बहुत अच्छा कंसेप्ट, इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट. ओके, व्हाट कैन वी नो बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, चाहे वो आईज हो, ईयर्स हो, स्किन हो, या फिर स्मेल हो, या फिर टेस्ट हो, ये जो चीज़ें हैं बियॉन्ड आवर इंफॉर्मेशन दैट आर प्रोवाइडेड बाय सेंस ऑर्गन्स, व्हाट इज द गारंटी दैट what we know is true? The thus major concerns of epistemology are knowledge and truth. Very important. Knowledge and truth. क्या चीज़ आप जानते हो और क्या चीज़ आप मानते हो, ये दोनों का जो डिफरेंस है, इसी चीज़ पे काम किया गया है. किसके अंदर? एपिस्टेमोलॉजी के अंदर. किसके अंदर? एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज और ट्रुथ के बीच का जो कंसर्न है, ठीक है, what we believe and what we know, what is the difference? These type of questions are given by the renowned epistemologist. Okay, got it? So let's move to the next part. Yes, okay. Now let us discuss about the term information. What we understand from the term information. So now we'll discuss about what इंफॉर्मेशन. व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन द हिंदी में बोलते हैं इसको सूचना, ठीक है. नॉलेज को हिंदी में ज्ञान बोलते हैं, एजुकेशन को हिंदी में शिक्षा बोलते हैं, और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, ठीक है. सो नेवर कंफ्यूज विद दीज थ्री टर्म्स, राइट? नॉलेज, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन. नोट दैट एजुकेशन इज अ ब्रॉडर टर्म, knowledge is a part of it. Okay, चलिए. Information is a processed, organized and structured data. So it is a processed,
It is an organized and is structured data, means it is processed in a particular way, it is well organized and it is structured in a particular fashion, okay, particular way. It provides context for data and enables decision making process. Means, what does it mean? If we want to make a particular decision, we need to have a particular sense of we need to have a particular data or a particular information how to do that, right? So in order to take a particular decision, we need to have a particular information, right? Information can be transmitted in time via data storage and space via communication and telecommunication. Information means knowledge acquired through experience or study. Now very important term, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होगा, इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर टाइम में हम चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो डेटा स्टोरेज से हो या स्पेस से हो या किसी से कम्युनिकेट करके हो या फिर फ़ोन कॉल्स के थ्रू हो, कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन हम किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो या ऑडियो फॉर्मेट में हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ किसी पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आती है कि सर यहाँ पर चोरी होने वाली है या चोरी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिसीजन लेना है, डिसीजन ये लेना है ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को, क्या हमें ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो सही है या नहीं है, ये कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स दैट हैज़ कम फ्रॉम द राइट सोर्स और नॉट, राइट। सेकेंड थिंग, दैट ही विल टेक द डिसीजन to go to that place and search if there is any sort of nuisance or any sort of problems, right? Suppose कहीं पे बॉम्ब, किसी ने इंफॉर्मेशन दिया कि यहाँ पे बॉम्ब लगा हुआ है सर सिनेमा हॉल के अंदर, तो प्लीज़ आकर के चेक कर लीजिए, ठीक है, और उसने फ़ोन काट दिया, तो पुलिस ऑफिसर दो चीज़ें चेक करेंगे, क्योंकि पहली बात एपिस्टेमोलॉजी ये बोलता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही जगह से आया है या नहीं आया। दूसरी बात, ये बात जैसे कि उनके पास फ़ोन आया था तो ये कहाँ से बात आ रही है, टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वो डिसीजन लेगा पुलिस ऑफिसर कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो इमिडिएटली क्या करते हैं, कुछ हवलदार को या फिर कुछ कांस्टेबल्स को भेजा जाएगा उस सिनेमा हॉल में सर्च करने के लिए, और पुलिस के बॉम्ब स्क्वाड को बताया जाएगा कि यहाँ पे चोरी होने वाली है या सर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, उसका प्रॉपर नॉलेज चेक की जाएगी और उसके बाद उस पर करेक्ट एक्शन लिया जाएगा। वैसे ही इंफॉर्मेशन किसी के एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है या किसी के स्टडी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, अगर जैसे किसी ने कहा कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से सोलर का जो एनर्जी है, सोलर सिस्टम का जो एनर्जी है, सन का जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, एक्सपीरियंस है या फिर स्टडी है, तो ये भी एक तरह से क्या है, नॉलेज है। तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज तब कहलाता है जब किसी का वो एक्सपीरियंस हो या किसी का स्टडी हो। जैसे टंगस्टन का यूज़ किया जाता है बल्ब बनाने में, तो ये एक्सपीरियंस भी है, स्टडी भी है, और इसको हम इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या बन गया, नॉलेज बन गया, जब ये क्या है, करेक्ट एक्सपीरियंस है और स्टडी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। पहली बात, नॉलेज कैन नॉट बी रियली मैनेज्ड बिकॉज इट रिसाइड्स इन वन माइंड। जो नॉलेज ऑलरेडी बन गया है उसे मैं मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के माइंड में पहले से बना हुआ है, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज रिसाइड्स इन वन माइंड। जबकि इंफॉर्मेशन इज मच मोर इजली आइडेंटिफाइड, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। किसी के अंदर कितना नॉलेज है, किसी आदमी के अंदर, ये पता लगाना या उसको मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। जबकि कोई इंफॉर्मेशन को हम आसानी से पता लगा सकते हैं, उसे ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि वो सही जगह से आया है कि नहीं है, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज इज द ब्रॉडेस्ट टर्म, जैसे कि मैंने कहा कि नॉलेज इज द ब्रॉडेस्ट टर्म, while information is narrow concept. It includes facts and ideas. Knowledge facts और ideas पर depend करता है. Understanding and totality of what is known.
जैसे कि हम बात कर रहे हैं नॉलेज जो है ब्रॉडेस्ट टर्म है, वो फैक्ट्स और आइडियाज़ पर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंडिंग और ओवरऑल जो टोटलिटी कंसेप्ट का है उस पर बेस्ड है नॉलेज। जबकि अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन क्या होता है, नैरो होता है, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। जबकि नॉलेज बहुत बड़ा पार्ट है, वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, आइडियाज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उस पूरे टोटलिटी पे डिपेंड करता है कि किसी का एक्सपीरियंस, किसी का नॉलेज, किसी की अंडरस्टैंडिंग, किसी का बिलीफ, किसी का वैल्यूज़, किसी का एक्सपीरियंस, ये सब पे डिपेंड करता है नॉलेज। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज in science is targeted at discovering some new objective laws typical of this process, laws related to all phenomenon of the reality। जैसे कि अगर हम बात करें नॉलेज, जैसे साइंस के बारे में आपकी नॉलेज है या नहीं है, अगर हमें ये पता लगाना हो तो हमें जो भी लॉज है, जैसे कि फिजिक्स की बात करें तो हमें न्यूटन्स लॉ का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉलेज है, ठीक है। वो सारे लॉज जो रिलेटेड है न्यूटन्स लॉ से, वो एक फिनोमिनन है, और ये कंसेप्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग है, और ये ट्रुथ है। और एपिस्टोमोलॉजी इस चीज़ को कहता है कि इट इज़ वेल वेरीफाइड एंड दैट इज द नैरो, जस्ट बिकॉज नॉलेज इज ए ब्रॉडेस्ट टर्म, ओके। जबकि इफ यू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द साइंस लॉज ऑल फिनोमिना। तो जैसा कि हमने देखा कि साइंस जो है नए नए लॉज को भी, अगर हम बात करें नॉलेज की, तो उसमें नए लॉज भी लाए जा सकते हैं। जबकि इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम नॉलेज की बात करें तो कोई नई चीज़, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, पहले हम लोग जानते थे कि बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था, सी होता था, सी प्लस प्लस होता था, जावा होता था, है ना। अब कब नई नई चीज़ें आने लग गई है, जैसे कि पाइथन है, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आने लग गए हैं, है ना। तो आईसीटी में नए नए अपग्रेडेशंस हो गए हैं, जैसे नई नॉलेज के बारे में बात करें जिसमें चैट जीपीटी हो गया। जबकि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो चीज़ पहले से चली आ रही है, जो पहले से वो इन्वेंट हो गया है। जबकि नॉलेज के अंदर क्या होता है, नई चीज़ें हम अपग्रेड करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। जबकि इंफॉर्मेशन मतलब एक बेसिक लेवल का फेनोमेना या बेसिक लेवल का कंसेप्ट जो पहले से चली आ रही है, चाहे वो साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, या वो आर्ट्स में हो। आई होप क्लियर हो गया सब लोगों को सारी बातें, यस और नो। नेक्स्ट टर्म इज टीचिंग। Next term is teaching. Teaching is a process in which one individual teaches or instructs another individual. Teaching is a process in which one individual teaches or instructs another individual. Teaching is considered as the act of imparting instructions to the learners in the classroom situation. It is watching systematically. Dewey says that teaching considers it as manipulation of the situation where the learner will acquire skills and insight with his own initiation. Jackson says teaching is a face to face encounters between two or more persons, one of whom there is a teacher intends to effect certain changes in other participants, that is students. As we discussed, yes, कि basically teaching is a process in which one person teaches another person. The one who teaches is called teachers, and those who gains or learns are called learners, or they are also called as students, right? And it is done systematically, yes, and the learner will acquire new skills, but he has to try of its own, right? Forcibly no one can do the same, right? So the teacher who teaches more than 10 students, 20 students, 50 students, 100 students, right? So there can be one teacher, right, or many students, right? So they are also called as instructors, right? Chali. Next part is our training. What is a training? Now there is a difference between teaching and training, right? Now training is also a part of teaching. Now what does it mean? Or developing in oneself or others any skills
Now, if we talk about training, so training is a part of teaching, yes, but it refers to developing in oneself or others any skills or knowledge or fitness that relate to specific useful competencies, right? So basically training refers to bring some skills or knowledge to some students or the learners. But when we talk about teaching, it's all about explaining some concepts or some information, while training is referred to give skills to someone in terms of knowledge, yes. Now training has some specific goals: improving one's capability, capacity, productivity and performance. It's very well said. C C P P: capacity, capability, productivity, performance. So basically it refers to the training attributes, right? When we talk about training, these four parameters are important. Why the training is done? For increasing the capacity, for increasing the capability, to increase the productivity, to increase the performance of any individual. Now, training means the action of teaching a person or animal in a particular skill or type of behavior. Now, basically, when we talk about training, it is done in a well systematic way so that certain changes are done in terms of a skill, right? The activity of learning or teaching the skills and the knowledge needed for a particular job or activity. I'll repeat: training means the action of teaching a person or animal in a particular skill or a type of behavior. The activity of learning or teaching the skills and knowledge needed for a particular job or activity, right? So if a particular person is a trainer, it means that he is giving a new skill to the trainees. Means it can be in the form of learning, right? Teaching the skills so that there is a change in their behavior, or there is a particular new skills that will come to the trainees by the trainer. Basically, it is also said as it is a practical knowledge that is imparted to the trainees by the trainer. Now, the important thing is that training has a goal. Yes, it has a goal, right? So, we need to understand there is a difference between teaching. So, teaching can be static, basically it's based on theoretical study, while training can be practical as well as theoretical. But yes, there should be some changes on one's capacity, capability, productivity and performance, right? Let's consider कि teaching, theoretical teaching, like if you consider like driving a car, driving a car. If we'll talk about driving a car, right? So can we consider driving a car as a teaching or a training? So if a person who is helping someone how to drive a car is not a teacher, but he is a trainer, because it cannot be done in a sitting classroom program. Rather, he will have to help him to do the practical implications how to drive a car. He has to explain him by sitting with the person who wants to learn how to drive a car, or a learner to drive a car, so that some changes can occur while training is completed. While teaching can be just an information like Newton's law of motion, just a static information that can be done in a classroom situation, that may or may not bring particular skills for the learner in teaching process. But in training, there is a change in the learning process or learning by a trainer, because he gets the practical knowledge and there is a change in terms of capability, improvement in one's capacity, productivity, performance and capability. So I hope we are clear with these words. So we are done with
unit number 1, we'll discuss the unit number 2. So I thank all the teachers for making a really fine-tuned content. Thankful to the teachers, Chitra ma'am, Neha ma'am, Sasikala ma'am, Aditi ma'am, and overall the principal, Dr. Fagunisa ma'am, for making a well fine-tuned content. So I tried explaining him explaining the concept. So I, Ravi Ranjan here. Thank you very much for joining this session. Meet you in the next unit. Thank you.